آج بھی اب جو کہے حسین زندہ نہیں ہے یا جو کہے ہم سمجھ نہیں پاتے حسین زندہ کیسے ہے. اگر حسین زندہ ہے تو ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ تو اسے کہنا ہم اپنی طرف سے جواب دیں گے تو بات بڑھ جائے گی. یاد رکھنا حسین وہ ہے جن کے بارے میں رب نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یاد رکھنا کسی کے پاس اتنا شعور نہیں ہے جس کی عقل میں حسین سما سکے. یاد رکھنا یہ کون بول رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ نے تجھے اتنا شعور نہیں بخشا یا تمہارے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو یا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو. کوئی ڈاکٹر کہے حسین سمجھ میں نہیں آتے, کوئی انجینئر کہے حسین سمجھ میں نہیں آتے, کوئی پروفیسر کہے حسین سمجھ میں نہیں آتے, کوئی عالم کہے حسین سمجھ میں نہیں آتے, کوئی وقت کا ذاکر نائک جیسا مولوی کہے حسین سمجھ میں نہیں آتے. صاحب کوئی اہل حدیث کا مولوی کہے حسین سمجھ میں نہیں آتے تو اسے کہہ دینا آپ حسین تیری عقل میں اس لیے نہیں آتے کہ خدا نے کسی کو اتنی عقل دیا ہی نہیں جو حسین کو سمجھ سکے. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو جب کسی کے پاس اتنی عقل نہیں کہ وہ حسین کو سمجھ سکے تو جو حسین کی زندگی کو نہیں سمجھ سکے وہ حسین کے نامہ کی زندگی کو کیا سمجھیں گے؟ کبھی تو میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانا. اب سنیے کربلا پڑھنا بھی ضروری ہے, کربلا سننا بھی ضروری ہے, کربلا جاننا بھی ضروری ہے. ماں ہو تو بھی کربلا پڑھے, بیٹی ہو تو بھی کربلا پڑھے, باپ ہو تو بھی کربلا سنے, بیٹا ہو تو بھی کربلا سنے, چچا ہو تو بھی کربلا سنے, بھتیجا ہو تو بھی کربلا سنے, بیٹی ہو تو بھی کربلا سنے, باپ ہو تو بھی کربلا سنے, بیٹا ہو تو بھی کربلا سنے, امام ہو تو بھی کربلا سنے, مقتدی ہو تو بھی کربلا سنے, پیر ہو تو بھی کربلا سنے, مرید ہو تو بھی کربلا سنے, ظالم ہو تو بھی کربلا سنے, مظلوم ہو تو بھی کربلا سنے. زمزم فتح پوری صاحب کہیں گے سلطان رضا کیا وجہ ہے کربلا سب کو سنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور جان لیجئے جس نے زندگی کی ساری کتابیں پڑھ لی مگر داستان کربلا کو نہ پڑھا, واقعات کربلا کو نہ پڑھا, شہید کربلا کو نہ پڑھا, سمجھ لو اس نے زندگی میں کچھ نہیں پڑھا. یاد رکھنا آپ کربلا پڑھتے بھی جاؤ, کربلا سنتے بھی جاؤ. باپ کربلا پڑھے گا امام حسین کی طرح اولادوں کو کٹانے کا راہ خدا میں طریقہ سیکھ جائے گا. کربلا پڑھے گا علی اکبر کی طرح باپ کی محبت میں جان دینے کا جذبہ سیکھ جائے گا. ماں کربلا پڑھے گی شہزادوں کی طرح اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں لٹانے کا جذبہ سیکھ جائے گی. بہن کربلا پڑھے گی حضرت زینب کا کردار مل جائے گا. بیٹی کربلا پڑھے گی حضرت سکینہ کا کریکٹر مل جائے گا. بچے کربلا پڑھیں گے اور وہ محمد و اصغر کا کردار سیکھ جائیں گے. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو چچا کربلا پڑھے گا تو امام حسین سے بھتیجوں کی طرح محبت کرنا سیکھ لے گا, اور بھتیجا کربلا پڑھے گا تو حضرت قاسم کی طرح چچا کی محبت میں جان دینے کا طریقہ سیکھ جائے گا. اب سمجھ لو یاد رکھنا حافظ قرآن کربلا پڑھے گا تو نیزے پہ چڑھ کر سر کٹا کر بھی قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائے گا. اور امام کربلا پڑھے گا تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سیکھ جائے گا. مقتدی کربلا پڑھے گا تو حور ابن ریاحی کی طرح امام کی محبت میں جان دینے کا طریقہ سیکھ جائے گا. مرید کربلا پڑھے گا تو پیر کی محبت میں جان دینے کا طریقہ سیکھے گا. اور پیر کربلا پڑھے گا تو شریعت کی بقا کے لیے خانقاہ سے نکل کر میدان میں آنے کا طریقہ سیکھ جائے گا. ظالموں تم بھی کربلا پڑھو, مظلوموں تم بھی کربلا پڑھو. ظالم کربلا پڑھے گا یزیدیوں کا انجام دیکھ کر ظلم کرنے سے توبہ کر لے گا. مظلوم کربلا پڑھے گا تو ظالموں
पढ़ेगा, सजदा करना सीख जाएगा, रोजादार करबला पढ़ेगा, भूखे प्यासे रोजा रखना सीख जाएगा, हाजी करबला पढ़ेगा तो काबा का तवाफ करना भी सीखेगा, काबे की अजमत को बचाना भी सीख जाएगा। इसलिए करबला सब पढ़े, इसलिए करबला सब पढ़े। जितने लोग पढ़ेंगे जरा हाथ उठाकर बता दे, है ना? माशाअल्लाह सारे लोग पढ़ेंगे। आप तो 20-22 साल से पढ़ते हैं। हुजूर नेमते मिल्लत ने इस जलसे का इनेकाद किया, सारा जमाना पढ़ रहा है। उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। ताजुश शरीया ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। मुफ्ती आजम ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। आला हजरत ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। पहले जान लो, जानना बहुत जरूरी है। मैं राफिजियों का खतीब नहीं हूँ, मैं खारजियों का खतीब नहीं हूँ, आपको जानना पड़ेगा इमाम हुसैन करबला गए क्यों। याद रखिएगा, जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहे, इमाम हुसैन खामोश रहे। हुकूमत चाहिए ले लीजिए, दौलत चाहिए ले लीजिए, सरवत चाहिए ले लीजिए, हुसैन सब में मुसालिहत कर लेगा। लेकिन जो ही यजीद इब्ने अमीर माविया बैठा, इमाम हुसैन जान गए ये शरीयत का बागी है, ये शरीयत का मुखालिफ है, ये अपनी तबीयत से हुकूमत चलाना चाहता है, ये कुरान की मर्जी से हुकूमत चलाना नहीं चाहता, ये शरीयत के मुताबिक लोगों को चलाना नहीं चाहता। इमाम हुसैन मुखालिफत में खड़े हो गए। यजीदियों ने कहा था हुसैन हाथ दे दोगे दौलत देंगे, हुसैन हाथ दे दोगे हुकूमत देंगे, हुसैन बैत कर लोगे सारी दुनिया को कदमों में उठा के डाल देंगे। इमाम हुसैन ने जमाने को बताया, लोगों हुकूमत की बात हो हम मुसालिहत कर लेंगे, लेकिन याद रखना जब बात नाना की शरीयत की आ जाए तो हुसैन खानदान का दाना तो गवारा करेगा, मगर शरीयत में किसी की मुदाखलत और शरीयत में याद रखना किसी किस्म का समझौता हुसैन को गवारा नहीं है। यजीद ने कहा तो करबला आना होगा, हुसैन ने कहा आऊंगा, कहा बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, कहा रखूंगा। अमर बिन साद ने कहा बैत कर लो वरना कत्ल हो जाओगे, कहा कत्ल हो जाऊंगा। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पूरी दुनिया के मुसलमानों को समझा दिया कि अहले ईमान का समझौता हुकूमत के मामले में तो किसी से हो सकता है, मगर याद रखना शरीयत के मामले में, ईमान के मामले में, अकीदे के मामले में, नबी के इश्क के मामले में हमारा किसी से समझौता न कल हुआ था न आज हुआ है। तो याद रखना इमाम हुसैन ने दीन के तहफ्फुज़ के लिए, मसलक के तहफ्फुज़ के लिए, ईमान और अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए करबला में सब कुछ कुर्बान करके बता दिया कि हुसैन किसी यजीदी से मुवाफ़क़त नहीं कर सकता, शरीयत के किसी बागी से मुवाफ़क़त नहीं कर सकता। यही मसलक इमाम हुसैन है। तो जो करबला में इमाम हुसैन ने किया, पैगाम दिया, वही काम बरेली में इमाम अहमद रजा खान ने किया। दीन के मामले में समझौता नहीं होगा, वहाबियों शरीयत के मामले में समझौता नहीं होगा, नजदियों शरीयत के मामले में समझौता नहीं होगा, राफिजियों शरीयत के मामले में समझौता नहीं होगा। तेरी हुकूमत तो बदल जाएगी, मगर हुसैन ने जिस शरीयत को बचाया था वो शरीयत कल भी बाकी है, वो शरीयत आज भी बाकी है। यही मामला, ठीक यही मामला मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में आया। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा तेरी हुकूमत तो बदल सकती है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती। ठीक यही मामला ताजुश शरीया के जमाने में आया। कहा याद रखना तुम्हारी हुकूमत तो बदल सकती है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती। तो जो मसलक करबला में इमाम हुसैन का है, वही मसलक भारत में बरेली के अहमद रजा का है। कल से न कहना मसलक आला हजरत क्या है, समझ जाना मसलक आला हजरत वही है जो करबला में इमाम हुसैन का
کا مسلک ہے، مسلک مجاہد ملت وہی ہے جو کربلا میں امام حسین کا مسلک ہے۔ نہ کربلا میں حسینیوں نے سمجھوتا کیا، نہ آج حسینی سمجھوتا کرنے کو تیار۔ اب آپ اتنا سمجھ لیں، جب آپ اتنا سمجھ گئے تو سارا معاملہ کربلا کی لڑائی، کربلا کی جنگ نہ دولت کے لیے ہے، نہ ثروت کے لیے ہے، نہ جان کی حفاظت کے لیے ہے، نہ خاندان کے تحفظ کے لیے ہے۔ کربلا کی جنگ اگر ہے تو شریعت کی بقا کے لیے ہے۔ مارکیٹ میں دو قسم کے حسینی ہیں، دو قسم کے، ایک وہ جو اوریجنل حسین ہے اور ایک وہ جو ڈپلیکیٹ حسینی ہے۔ کربلا دونوں جاتے ہیں، کربلا دونوں جاتے ہیں، مگر اوریجنل حسینی حضرت علی اکبر کی شکل میں کربلا میں شریعت بچانے جاتے ہیں، اور ڈپلیکیٹ حسینی بھارت کے مصنوعی کربلاؤں میں شریعت کو پامال کرنے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کو پامال کرنے والوں کے ساتھ مت رہیے، شریعت کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ رہیے، شریعت کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے گا، جہاں شریعت ہوگی وہاں پیار ہے، جہاں شریعت ہے وہاں وفا ہے، جہاں شریعت ہے وہاں خلوص ہے، جہاں شریعت ہے وہاں پر پیار ہی پیار ہے، وہاں پر ایک دوسرے کا حق ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ امام عالی مقام ہے۔ جب دیکھا یزید ہے کون، حسین ہے کون، نبی کے نواسے کا نام حسین ہے، سچائی کے علمدار کا نام حسین ہے، حق کی پہچان کا نام حسین ہے، شریعت کے محافظ کا نام حسین ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلک اعلیٰ حضرت یہی آپ کو پیغام دیتا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ بتائیے ایمانداری سے، امام حسین ہماری مجلسوں کے محتاج ہے؟ امام حسین کسی کے مرثیہ کے محتاج ہے؟ امام حسین کیا ہماری منقبت کے محتاج ہے؟ امام حسین کیا ہمارے نعروں کے محتاج ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا، امام حسین نہ تمہارے محتاج ہے، امام حسین نہ ہمارے محتاج ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں فلاں کام کرتا ہوں حسین کی محبت میں، میں فلاں کام کرتا ہوں حسین کی محبت میں، تو اگر حسین کی محبت میں کام کرتے ہو تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا حسین کو کون کام پیارا ہے، حسین کو کون سا کام عزیز ہے، حسین کو کس کام سے پیار ہے۔ اب مجھے ٹھہر کر کے کہنے دو، امام حسین کی یاد ہم کیا منائیں گے؟ اللہ نے امام حسین کی یاد کا ایسا انتظام فرما دیا، ایسا انتظام فرما دیا کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں آتے پہلے ہیں، ان کی یادیں بعد میں آتی ہیں، مگر یہ امام حسین ہے جو ابھی سیدہ خاتون جنت کی گود میں آئے بھی نہیں ہے۔ صحابہ، نبی صحابہ نماز کی حالت میں نبی پہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، آلے نبی پہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین آئے نہیں ہے، نماز آ گئی ہے اور نماز میں سب درود پڑھ رہے ہیں، تو حسین آئے نہیں مگر ان پہ درود ہو رہا ہے۔ جب حسین آ گئے تو بھی درود ہو رہا ہے، اور آج حسین اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں تو بھی ان پہ درود ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب دنیا میں بتاؤ مجھے، آپ کہتے ہو ہم محرم میں حسین کو یاد کریں گے، مگر اللہ نے ایسا انتظام کیا، محرم آئے نہ آئے حسین یاد آ رہے ہیں، آئے نہ آئے حسین یاد آ رہے ہیں، 10ویں محرم آئے نہ آئے حسین یاد آ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھو حسین یاد آ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھو حسین یاد آ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھو حسین یاد آ رہے ہیں، مغرب و عشاء کی نماز پڑھو حسین یاد آ رہے ہیں۔ ایسا اللہ نے انتظام کیا کہ کوئی چاہ کر بھی حسین کی یاد کو خدا سے الگ نہیں کر سکتا ہے، چاہے مسجد حرم ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے بیت المقدس ہو، چاہے دہلی کی جامع مسجد ہو، چاہے دھام نگر شریف کی جامع مسجد ہو، چاہے اڑیسہ کی جامع مسجد ہو، یاد رکھنا دنیا کی ساری مسجدوں میں جب جب آذان ہوگی حسین کے نانا کا نام لیا جائے گا، اور
इनाम देगा। एक नमाज ऐसी लाओ जहां सजदा हो मगर हुसैन पर दुरूद नहीं हो। एक नमाज ऐसी लाओ जिसमें सजदा हो और नबी और आले नबी पे दुरूद न हो। आपको कहना पड़ेगा नहीं मौलाना, चाहे दुनिया के किसी फिरके का मौलवी नमाज पढ़े, जब जब नमाज पढ़ेगा तब तब कंपलसरी है, दुरूद पढ़ना ही पड़ेगा। अब मुझे ठहरकर कहने दो, अगर आप इमाम हुसैन के असल मानने वाले हैं, असल हुसैनी है, तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम या मुहर्रम में हुसैन को याद मत कीजिए, ओरिजिनल इमाम हुसैन की तरह नमाजी बन जाइए, ताकि आपकी नमाज़े फज्र कहे हुसैनी मस्जिद में आ गया है, ताकि नमाज़े ज़ुहर कहे हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े असर बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े मगरिब बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े इशा बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े जुमा बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, ताकि आपकी नमाजों को देखकर ज़माना कहे जब हुसैनियों के सजदे का ये आलम है तो करबला में हुसैन के सजदे का आलम क्या हो। नारे पीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। तो असल मोहब्बत ये है कि हम हुसैनी नमाजी बन जाए। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, हो सके तो लाई दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाई दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले ली। तो कितने लोग सजदा करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग सजदा करना चाहते हैं? माशाअल्लाह, सब ओरिजिनल हुसैनी वही है जिसकी पेशानी में सजदे हुसैन की दाग पड़ जाए, जिसके दिल में इश्क हुसैन की दाग लग जाए। जमाना हमारे इश्क को देखकर कुछ भी कहे, मगर मौला हुसैन देखे तो कहे हमसे मिलने हमारा आशिक आ गया, हमारा आशिक आ गया है। ये मेरे इमाम, मेरे इमाम। आज यजीद चाहता क्या था? अच्छा, जो डुप्लीकेट हुसैनी मार्केट में घूमते हैं ना चचा, एक दिन उनसे मोहब्बत से पूछ लीजिए, बाबू तुम तो ओरिजिनल हुसैनी, हमसे भी पावरफुल हुसैनी हो, इसलिए हम मस्जिद जाते हैं, तुम करबला जाते। पावरफुल हुसैनी हो, आ जाते हैं। कहा इमाम हुसैन करबला किस लिए है? बस इतना बता दो, इमाम हुसैन करबला किस लिए गए थे? पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा शरीयत बचाने के लिए। तो उससे प्यार से पूछो, घर से बेटी बहनों को लेकर करबला जाना क्या ये शरीयत है? बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाना क्या ये शरीयत है? मसनूई करबला में खड़े खड़े बेटियों का गुलगप्पा खाना क्या ये शरीयत है? करबला के मैदान में खड़े खड़े पानी पीना क्या ये शरीयत है? नमाज का वक्त हो जाए करबला में आजान न देना क्या ये शरीयत है? नमाज का वक्त गुजर जाए एक वक्त की नमाज न होना क्या ये शरीयत है? कहेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो कहना शर्म करो, कल अगर करबला तुझसे इमाम हुसैन ने मैदान महशर में पूछ दिया कि हम तो करबला गए थे भूखे प्यासे रहकर भी सजदा करके नमाज की आबरू बचाने के लिए, और तुम मेरे नाम पे करबला गए थे शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए, इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए करबला न जाओ, हुसैन की अजमत की हिफाजत के लिए करबला जाओ। बोलिए ऐसा होना चाहिए। गलत बोलूं तकदीर बंद, सही बोलूं कबूल कीजिए, सही बोलूं कबूल कीजिए। सिर्फ हमने यही जाना है हुसैन ने तलवार चला दिया, हमने यही जाना है इमाम हुसैन
के नाम पे लोगों को पानी पिलाना है, हमने सिर्फ यही जाना है। हुसैन के नाम पे लंगर खिलाना है, मगर हुसैन के नाम पर पानी बाद में है, हुसैन के नाम पर नियाज बाद में है, हुसैन के नाम पर फातिहा बाद में है, हुसैन के नाम पर शिरनी बाद में है। हुसैन ने जिस शरीयत को बचाया है, उस शरीयत के लिबास को ओढ़ना ये ओरिजिनल हुसैनियों की पहचान है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उड़ीसा में ओरिजिनल हुसैनी देखना हो तो इन करबला जाने वालों को ना देखो, इन मसनूई करबला जाने वाले को ना देखो, बल्कि भद्रक में चलकर उड़ीसा के शहंशाह हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को देखो। वो है जिन्होंने हुसैनियत के परचम को ऊंचा किया है। आइए मैं बताना चाहूंगा, इमाम अली मकाम ने जब देखा कि यजीद तो दमिश्क में बैठा है लेकिन वो जबरदस्ती चाहता है हुसैन की बैयत ले ले, इमाम हुसैन ने कहा हुसैन तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता, हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर सकता। लोगों ने कहा था हुसैन नहीं करोगे, कहा नहीं करूंगा, कहा उन लोगों ने हुसैन नहीं करोगे तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने जमाने को दर्श दिया। ये लोगों याद रखना, आज हम भी यही सोचते हैं फला जगह पे मामला हो हमें बोलने की क्या जरूरत है, वहां के लोग समझ लेंगे, जब हमारे ऊपर बात आएगी तो हम देखेंगे। आज लोगों का मिजाज बन गया है। उस वक्त भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे हुसैन के नाना ने इस्लाम फैलाया है, हुसैन के नाना ने शरीयत का ऐलान किया है, आजान में हुसैन के नाना का नाम लिया जाता है, इसलिए शरीयत की बका के लिए हुसैन को निकलना चाहिए। और याद रखिएगा, यजीद चाहता है हम अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारे और हुसैन चाहते हैं पूरी दुनिया नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। यजीद चाहता है हम तख्त पे बैठकर माज़अल्लाह शराब को आम करें, हुसैन कह चाहते हैं नाना शरीयत कुछ इस्लाम में शराब पीना हराम है, इसलिए कोई मुसलमान शराबी न रहे, शराबी न रहे। अल्लाह अल्लाह यजीद चाहता है हम जिससे चाहे निकाह कर ले या जिसे चाहे बीवी बना ले, हुसैन कहते हैं नहीं, जिससे शरीयत ने निकाह की इजाजत दी उससे करो, जिससे शरीयत ने मना किया उससे रुक जाओ। यजीद चाहता था सूद आम हो जाए, हम अपनी मुताबिक जिंदगी गुजारे, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। जैसे आज का मेरी कौम का कुछ नौजवान भी है जो कहते हैं हम किसी मौलवी के कहने पर जिंदगी कैसे गुजारेंगे, जैसे यजीद और यजीदी कहते थे हम अपनी तबीयत के मालिक हैं। आज भी मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा ये हमारा जिस्म है, हम कैसे चाहे जिए, हम कान में बाली पहने आपका क्या जाता है, हम बाल बढ़ाकर चोटी लगाने आपका क्या जाता है, हम गले में सोने का चैन पहने आपका क्या जाता है, हम हाथ में कड़ा पहने आपका क्या जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बेशक तुम सही कह रहे हो, हमारा क्या जाता है, मगर ये बात हमसे न पूछो, करबला में इमाम हुसैन से पूछो। इमाम हुसैन ने यही कहा यजीद तख्त तेरे पास है, ताज तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, लश्कर तेरे पास है, तू सोच रहा है हम हुकूमत के जरिया हम हुकूमत के जरिया इस्लाम की ताकत और शरीयत पे अमल को रोक देंगे, हम ताकत के जरिया हुसैन जैसे हक के इमाम को इमामत से रोक देंगे। ऐ यजीद तेरी ताकत नहीं है, ये ताकत खत्म हो जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर हुसैन सच्चाई की राह पे चलेगा, सर बच गया तो भी इस्लाम जिंदा रहेगा और सर कट गया तो भी इस्लाम जिंदा रहेगा, तो भी इस्लाम जिंदा रहेगा। जमाने को इमाम हुसैन ने पैगाम दिया नहीं नहीं ए मुसलमानों, ये जिस्म तेरा जरूर है, ये आंखें तेरी जरूर है, ये निगाहें तेरी जरूर है, ये बाजू तेरे जरूर है, मगर याद रखना जिंदगी तेरी हो, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें तेरी हो, हया मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो, और ऐ कौम की बेटियों जिंदगी तेरी हो, सीरत खातूने जन्नत की हो, आंखें तेरी हो, हया फातिमा ज़हरा की हो, तब तो तू घर में भी हुसैनी है, मैदाने अमल में भी हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम
कहेंगे साहब आपको ओरिजिनल हुसैनी बनना ही है, बनिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, हम हुसैनी है हैदर, दुनिया से डरे क्यों कर, मिलता है मजा हमको उन पे जान उठाने से, आओ मेरी कौम के शहजादों जरा और करीब चलते हैं। इमाम अली मकाम ने दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सजादा नशी है, मगर इसलिए खानकाह को छोड़ दिया कि इसके नाना की शरीयत की हिफाजत हो जाए। मस्जिद नबवी के इमाम है मगर मुसल्ले इमामत को छोड़कर करबला निकल गए ताकि नाना की शरीयत की हिफाजत हो जाए। आज मैं पूरी दुनिया के इमामों और खानकाहों के पीरों से कहूंगा आप हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जब शरीयत की बात आए ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, जब बात शरीयत की आए खानकाह से निकल जाना, जब बात शरीयत की आए तो मस्जिदों से साथियों को लेके निकल जाना, जब बात शरीयत की आए तो दरसगाह छोड़ करके मैदान में निकल जाना, जब बात शरीयत की आए तो मोहल्ला छोड़कर घर और खानदान छोड़कर गांव छोड़कर शरीयत की बका के लिए निकल जाना। साहब इसे हुसैनियत कहते हैं, इसे हुसैनियत कहते हैं, इसे साहब इमाम हुसैन का मिशन कहते हैं। आज हमें सब याद है मगर इमाम हुसैन का मिशन हम भूल गए हैं। इमाम अली मकाम है, पूरे घर वालों को हुक्म देते हैं करबला चलने की तैयारी करो, पूरा काफिला तैयार हो रहा है। यार इमाम आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नाना का मदीना छूटने वाला है, मैं जरा नाना के रौज़े अनवर पे जाना चाह रहा हूँ, नाना की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूँ। आज हमें मज़ारों से रोकने वालों इमाम हुसैन तो नाना की बारगाह में दुखड़ा सुनाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा मैंने पहले ही कहा है करबला में क्या नहीं है, पता क्या चला सरकार की बारगाह में दुखड़ा सुनाना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन का तरीका है। मेरे इमाम पहुँच गए हैं, नाना जान आपकी उम्मत के शरीफ लोगों ने हुसैन पर मदीने की ज़मीन को तंग कर दिया है। ये मेरे नाना बस इजाजत मिल जाए, आपकी दुआएं मिल जाए, हुसैन उस करबला में जाना चाहता है जिस करबला की मिट्टी आपने उम्मे सलमा को दिया है। हुसैन उस करबला में जाना चाहता है जहाँ की मिट्टी आपके पास जिब्रील अमीन लेकर आए हैं। हुसैन उसी करबला में जा रहा है जहाँ पे हुसैन की शहादत की कब्र आपको फरिश्तों ने दी है। ए नाना जान हम जानते हैं शहादत खुदा की तरफ से इनाम है, हमें खुदा की तरफ से मिलने वाला इनाम मंजूर है, मगर ये मेरे नाना आप मेरी सब्र के लिए दुआ कर दे। हुसैन दुआ लेकर अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी लगाते हैं, जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं, माँ की तुरबत पे हाजिरी देने के बाद मदीने की जमीन को छोड़कर निकल रहे हैं। आज जब हुज्जाज मदीना जाते हैं तो मदीना छोड़ते वक्त मदीने की तरफ उन्हें ऐसा रुलाती है कि मदीना छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस हुसैन को मदीने की मोहब्बत ने कितना रुलाया होगा, उस हुसैन को मदीने के प्यार ने कितना रुलाया होगा, जिस हुसैन का बचपन मदीने में गुजरा हो, जिस हुसैन ने मस्जिद नबवी में नाना के पुष्प पे चढ़ा हो। वो हुसैन हजरत अबी हुरैरा फरमाते हैं कि हम आका के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। इसे अल्लामा जलालुद्दीन सिबीती ने अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा में नकल किया। आओ जरा एक मोहब्बत की झलक देख लो, आका कितना प्यार करते थे। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं सबसे ज्यादा जिस सहाबी से हदीस मरवी है उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहते हैं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं आका करीम नमाज पढ़ा रहे हैं, हसनैन करीमैन आका के पुष्प पे चढ़ जाते, जब वो उतरते तो आका सजदे से सर उठाते, फिर आका सजदे में जाते, फिर हसनैन चढ़ जाते, फिर जब उतरते तो आका सजदे से सर उठा देते, और जब आका कयाम में खड़े होते तो एक तरफ इमाम हसन खड़े हो जाते, एक तरफ इमाम हुसैन खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह ये नमाज में किसकी याद है, ये नमाज में कौन खड़ा है, ये नमाज में नबी के अगल बगल में कौन खड़ा है। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं जब नमाज खत्म हुई मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ, आका जी अगर इजाजत हो तो हसनैन करीमैन को मैं घर पहुंचा दूं। आका करीम हसनैन करीमैन को दर्श दे रहे हैं, ऐ हुसैन आओ आओ इधर, मैंने तुझसे नमाज की हालत में भी मोहब्बत की है। आका इशारे इशारे में बता रहे हैं ऐ हुसैन देख मैं सजदे में था, तू मेरे ऊपर सवार था लेकिन मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। ए हुसैन एक वक्त आएगा कि
मुसाफिर तख्त पर बैठेगा और वो चाहेगा तेरे नाना की लाई हुई शरीयत को बदल दिया जाए। ऐ हुसैन, आज मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, वो वक्त आएगा तो तू भी नाना की शरीयत को गिरने नहीं देगा। ज़माने को इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया। हज़रत अबी हुरैरा कहते हैं, मैंने कहा आका जी इजाजत हो तो हसनैन करीमैन को घर पहुंचा दो। आका फरमाते हैं नहीं। कहा आका जी ले जाऊं? कहा नहीं। इतने में आसमान से एक नूर उतरा और आका फरमाते हैं हसनैन तुम इस नूर के सांचे में ढलकर अपने घर तक चले जाओ। तभी तो मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है पहले नूर तेरा सब घराना नूर का। याद रखना दुनिया वालों, नमाज में किसकी याद आती है? नमाज में दुनिया की याद आई तो नमाज में याद आए दुनिया की तो याद रखना मना है। ज़हन को पाकीज़ा करो, नमाज में दुनिया की याद मत आने दो। मगर हुसैन आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुसैन आए कोई परेशानी नहीं है। तभी तो हज़रत ख्वाजा ने समझा दिया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्तर दस्ते यजीद हक़ा के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। घर कर कहने दो अल्लाह अल्लाह, जिस हुसैन को नबी ने इतना प्यार किया है, जिस हुसैन से नबी ने इतनी मोहब्बत की है, भला वो हुसैन मदीना छोड़कर कैसे जाना गवारा करेगा। मगर बात जब नाना के दीन की आई, बात जब नाना की शरीयत की आई, जब इस्लाम की अजमत की आई, इमाम हुसैन तैयार हो रहे हैं। खुद तैयार ही नहीं हुए बल्कि पूरा खानदान तैयार करा दिया। लेकिन घर में एक बच्ची है जिनका नाम हजरत सुगरा है। अल्लाह अल्लाह, सब तैयार हो रहे हैं मगर हजरत सुगरा को जाने के लिए कोई नहीं कहता। हजरत इमाम आली मकाम करीब पहुंचे हैं, जो ही घर में आए हजरत सुगरा कहती है बाबा जान सब करबला जा रहे हैं मगर सुगरा को इजाजत क्यों नहीं है। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं बेटी सुगरा, आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, आप करबला जाने के लायक नहीं है। ऐ मेरी शहजादी, किस बाप को गवारा होगा वो अपनी लख्ते जिगर को, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म से जुदा करे। ए मेरी बेटी, बाप की तो ख्वाहिश यही है कि तुझे लेकर चलो, मगर आपकी तबीयत इतनी नासाज है कि आप ऊँटनी पे बैठने के लायक नहीं है। हजरत सुगरा मचल गई, अर्ज़गुज़ार होती है ए मेरे बाबा जान, सुगरा को सवारी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इजाजत दे दें, मैं पैदल चलने को तैयार हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं बेटी जिद न करो, बाबा की बात मान लो। हजरत सुगरा मचल कर कहती है ये मेरे बाबा हुसैन, मैं जानती हूँ अब्बा हुजूर औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है, आप यही न सोच रहे हैं सुगरा करबला में किस लिए जाएगी, सुगरा किसी काम के नहीं आएगी। ये बाबा जान मैं आपके बड़े काम आऊंगी, ये बाबा जान आप मुझे लेकर चले। हज़रात वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, आपको बताना मकसद है। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को तालीम कैसी दी थी, हजरत इमाम हुसैन की बेटी की तरबियत का आलम क्या था, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती के इश्क और मोहब्बत का आलम क्या था। हजरत इमाम अली मकाम से कहती है बाबा जान मैं करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। ए बाबा जान मैं जब घर में हूँ तो जब मुअज्जिन मस्जिद नबवी में आज़ान देता है तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, बाबा आपके वुज़ू के लिए पानी लाती हूँ, भैया अली अकबर के लिए अमामा लाती हूँ, अम्मा के लिए जानेवाज बिछा देती हूँ, सूफी जान नमाज पढ़ लेती है तो कुरान ला कर देती हूँ, सकीना को बैठकर कुरान पढ़ाती हूँ, भाई अली असगर का झूला झुलाती हूँ। बाबा जान मुझे करबला में चलिए, मैं करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। जब करबला में आजान होगी तो सुगरा बाबा के वज़ू के लिए पानी लाएगी, भैया अली अकबर के लिए अमामा लाएगी, फूफी ज़ैनब के लिए जानेमाज बिछा देगी, माँ शहर वालों के लिए मुसल्ला बिछा देगी, बहन सकीना को कुरान पढ़ाएगी। और जब करबला में कोई जख्मी होगा तो मैं दादी की सुन्नत पे अमल करते हुए जख्मियों को मरहम लगाऊंगी। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहता है, ऐ
हुसैन से मोहब्बत करने वाली मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रज़ा तुझसे इतना पूछना चाहता है, बहुत प्यार है तुझे सैयदा फातिमा ज़हरा से, तो बता क्या तुमने भी कभी अपने बाप को वुज़ू के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुमने भी कभी अपने भाई को मस्जिद में सजा सवार कर नमाज पढ़ने के लिए भेजा है? क्या तुमने भी कभी अपने घर में छोटे भाई बहनों को बैठाकर कुरान पढ़ाया है? क्या तूने भी कभी माँ के नमाज पढ़ने के लिए जानेमाज बिछाए हैं? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, मुहर्रम का चांद निकलता है, अगरबत्ती तुम जलाती हो, मुहर्रम का चांद निकलता है, मोमबत्ती तुम जलाती हो, मुहर्रम का चांद निकलता है, फातिहा तुम कराती हो, तो आज के इस जलसे से सुल्तान रज़ा पैगाम देना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज के बाद अगरबत्ती और मोमबत्ती बाद में जलाना, अपने घरों में किरदारे सुगरा का चराग पहले जलाना, ताकि तुम्हारे घर की माएं भी नमाजी बन जाए और हमारे घरों की बहू और बेटियां भी नमाजी बन जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, यादगारे शहीदाने करबला, किरदारे शोहदाए करबला। बोलिए ऐसा होना चाहिए, सिर्फ दिल से बोलिएगा, दिल कहे तो हाथ उठाकर बोलिएगा ऐसा होना चाहिए, जोर से बोलिए होना चाहिए। तो आप बेटियों को ये बताइए, फातिहा इस्लाम में मुस्तहब है और नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। माँ भी नमाज पढ़े, बेटी भी नमाज पढ़े, बहू भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, बहन भी नमाज पढ़े, भाई भी नमाज पढ़े, हुसैन का फातिहा भी हो, हुसैन का नियाज भी हो और हमारे घरों में सजदे हुसैन की झलक और चमक। तब न ज़मज़म फतेहपुरी साहब पर कहते हैं, करबला आम करे, करबला आम करे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे बोलिए पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना करबला? जरा हाथ उठाकर बोले करबला, और जोर से बोले करबला, करबला आम करे। अब आइए, करबला आम क्यों करे? करबला आम क्यों करे? मेरे इमाम है, सुनना चाहते हैं? अरे बोर नहीं ना हो रहे हैं, तकलीफ नहीं ना हो रही है? अब सुनिएगा, प्यार से सुनिए, मैं ये समझूंगा कि आपका मेरा बोलाना वसूल हो गया और मेरा आना वसूल हो गया। ये मेरी कौम के शहजादों, हजरत सुगरा की इन बातों को सुनकर इमाम का कलेजा मचल गया। आह मेरी बेटी, मैं तुझे जरूर लेकर चलता। इमाम फरमाते हैं, बेटी फिक्र न करो, बस 1 महीना की बात है, 1 महीना आप आराम कर लो, मैं अली अकबर को भेज कर आपको बुला लूंगा। हजरत सुगरा मान जाती है। इमाम अली मकाम आंखों में आंसुओं के कतरात लिए मदीना छोड़ रहे हैं, पूरा काफिला आगे है, मेरे इमाम पीछे पीछे चल रहे हैं, मुड़ मुड़ कर नाना जान के रोज़े को देख रहे हैं। अर्ज करते हैं, नाना जान, आज आपका नवासा आपकी सुन्नत को अदा कर रहा है। एक वक्त था जब अल्लाह के बनाई हुई मखलूक ने आपके ऊपर मक्के की जमीन को तंग कर दिया, तो आपने इस्लाम की तबलीग के लिए मदीने का सफर किया। आज आपकी उम्मत के शरीरों ने हुसैन पे मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। आज हुसैन मदीने से हिजरत करके मक्का होते हुए करबला जा रहा है। नाना जान, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करे। इमाम हुसैन की आंखों से मदीना उछल होता है। मक्का पहुंचते हैं, मक्का से इमाम अली मकाम करबला के सफर पर है। रास्ते में यजीदियों की 1000 फौज को लेकर हजरत हुर इब्ने रियाही चले हैं। जब उन पे हुसैनियों की नजर पड़ी है, रास्ते में मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिल गई है। इमाम हुसैन आने वालों के मंशा को समझ गए हैं। इमाम हुसैन के साथियों ने बोला, या इमाम लगता है ये यजीदी हमारे मुकाबले में आ रहे हैं, हम ऐसा करते हैं पहाड़ी पे पहले पहुंचते हैं और हम अच्छी जगह
तलाश करके अपना क़याम करते हैं ताकि उनसे मुकाबले में तकलीफ का सामना न करना पड़े। अल्लाह अल्लाह, जाने वाले 72 हैं मगर हौसला 72,000 का लेकर के चले हैं, 72,000 का लेकर चले हैं। मगर डॉक्टर इकबाल ने यजीदियों के अंजाम को देखा तो कहा क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। बुरा मत मानना आज के इस दौर में या हुसैन कहकर इमाम हुसैन के मिशन को कुचलने वालों, मेरे इमाम तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी में याद रखना, वही काम करना जो मेरे इमाम ने किया है। आओ जरा सा देखो, ये हुसैनियों का काफिला है, ये हुसैन इब्ने अली है। पहाड़ी में जबकर पहले देखते हैं हुसैनी भी पहुंच जाते हैं। ऐसी जगह का इंतखाब हुआ जहाँ पे चश्मा भी मौजूद है, जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे सारी चीजें दस्तयाब है। हुसैनी बड़े आराम से ठहर गए। उधर हुर इब्ने रियाही का काफिला भी पहुंचा, वो काफिला भी थोड़ी दूर पर ठहर गया। मेरे इमाम ने हजरत अब्बास अलमदार से कहकर हुर इब्ने रियाही को बुलवाया, पूछा बताओ किस मकसद से आए हो। कहा या इमाम आप यजीद की बैयत कर ले या हमारे साथ दमिश्क चलने को तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा मैं दोनों में से कोई नहीं कर सकता, ना ही मैं यजीद के पास जा सकता और ना ही मैं उसकी बैयत कर सकता हूँ। हुर इब्ने रियाही कहते हैं हुजूर मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपसे जंग कर सकूं। या इमाम बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि मेरा काफिला आपके साथ चलता रहे। अल्लाह अल्लाह, सुनो जरा गौर से सुनो। हुर इब्ने रियाही अपने खेमे में चले गए, हुसैनी अपने खेमे में है। इधर हुर इब्ने रियाही के फौजियों के पास पानी मौजूद नहीं है। 1000 यजीदी पानी के लिए परेशान है। यजीदियों ने हुर इब्ने रियाही से कहा ऐ हुर इब्ने रियाही आप हमारे सिपा सलार है, आप हमारे रहबर है, आज हमारे खेमे में पानी का एक कतरा नहीं है। ऐ हुर इब्ने रियाही पानी का इंतजाम कर दीजिए, अगर पानी नहीं मिला तो सारे यजीदी प्यास के मारे मर जाएंगे, हमारे जानवरों का क्या होगा। हुर इब्ने रियाही ने कहा पता लगाओ इलाके में कहीं पानी मौजूद हो तो हम चल कर लाते हैं। यजीदियों ने कहा हुर इब्ने रियाही इलाके में कहीं भी पानी का इंतजाम नहीं है। हुर इब्ने रियाही ने कहा फिर पानी कहाँ है। कहा हुजूर सिर्फ एक खेमे में पानी है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। आओ जरा हुर की जबान से सुनो। हजरत हुर कहते हैं यजीदियों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर पानी हुसैन के खेमे में है तब तो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। पानी अगर हुसैन के खेमे में है तब तो कोई प्यासा नहीं मरेगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, इतना कहना था। यजीदियों ने कहा हुर कैसी बात करते हो, क्या तुझे नहीं मालूम जमाने का ये फितरत है, लोगों की ये फितरत है। तुझे नहीं मालूम कि जिद्दू क्या भला कोई दुश्मन किसी को पानी पिलाता है। हम हुसैन से लड़ने आए हैं, हुसैन हमें पानी क्यों देंगे, हम हुसैन से के मुकाबले में आएंगे, हुसैन हमें खाना क्यों देंगे। हुर इब्ने रियाही ने कहा यजीदियों तुमने यजीद को देखा है, तुमने हुसैन को नहीं देखा है। अरे तुझे पता नहीं हुसैन वो है जिनके नाना पे कुरान उतरा है, हुसैन वो है जिनके नाना पे कुरान उतरा। या उनके नाना जान ने कुरान के कलमे को यूं नहीं बयान किया अम्मा साइला फला तनहर, अम्मा साइला फला तनहर के साइल जब तेरे दरवाजे पे आ जाए तो उन्हें झिड़कना मत, उन्हें भगाना मत, बल्कि साइल को नवाज करके भेजना। ये कौन बोल रहा है? हजरत हुर इब्ने रियाही बोल रहे हैं ऐ यजीदियों याद रखना हुसैन के नाना भी सखी है, हुसैन के पापा भी सखी है, हुसैन की नानी, हुसैन की दादी भी सखिया है, हुसैन की नानी भी सखिया है। याद रखना हुसैन को, याद रखना, याद रखना हुसैन वो नहीं है बल्कि कुरान की आयत इसके तर्जमे और तफसीर का नाम हुसैन है। चलो चलो हम हुसैन से पानी मांग कर लाते हैं। जाओ हुसैन दुश्मन देखकर
पानी नहीं पिलाते, हुसैन प्यास देखकर पानी पिलाते हैं, हुसैन भूख देखकर खाना खिलाते हैं। प्यास लगी है हुसैन तुझे पानी जरूर पिलाएंगे, हुसैन तुझे पानी जरूर देंगे। अल्लाह अल्लाह ये यजीदी है। दौड़े दौड़े गए इमाम की बारगाह में गए, इमाम के खेमे के करीब पहुंचे, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या हुसैन। मेरे इमाम खेमे से बाहर निकले, जवाब दिया, कहा कहो क्या बात है? कहा हुजूर हम आए तो यजीद के तरफ से है। कहा मसला क्या है? कहा मसला एक है हुजूर, हमें प्यास लगी है, क्या पानी मिल जाएगा? इमाम ने कहा बेशक पानी मिलेगा, ये बताओ सिर्फ तुम्हें प्यास लगी है या सारे यजीदियों को प्यास लगी है? कहा हुजूर हम ही प्यासे नहीं है, सारे यजीदी प्यासे हैं। कहा जाओ सबको बुला कर लाओ। यजीदी चलने लगे, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहते हैं हमने इंसान बहुत देखा मगर हुसैन से ज्यादा सखी नहीं देखा है, हमने इंसान बहुत देखा मगर हुसैन से ज्यादा रहमदिल नहीं देखा है, हमने अपनों को पानी पिलाने वाला देखा है मगर ये हुसैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हैं जो अपनों को भी पिलाते हैं दुश्मनों को भी पिलाते हैं। अभी थोड़ी दूर बढ़े थे, इमाम ने आवाज दिया सुनो तुम ही प्यासे, सिर्फ तुम ही प्यासे हो, साथी ही प्यासे हैं या तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं? कहा हुजूर उन्हें भी प्यास है। कहा उन्हें भी लेकर आना, बर्तन भी लेकर आना, राह तुम खतर है, आ जाओ हुसैन तुझे पानी देगा। सारे यजीदी जाकर मुस्तैद जाफेजा सुनाते हैं, यजीदियों चलो हुसैन ने पानी देने के लिए बुलाया है। सारे यजीदी झूम गए, अपने बर्तन को लेकर, अपने जानवरों को लेकर सारे यजीदी खेमे इमाम हुसैन की तरफ चल पड़े। अल्लाह अल्लाह साहब जब चले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था अब जरा सा सुने, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यजीदी झूम गए, चलने लगे, कोई बर्तन लेकर चला है, जानवरों को लेकर चला है। मेरे इमाम खेमे से मशकीजा निकालते हैं, पानी पिलाते जा रहे हैं, एक नहीं 1000 यजीदियों को पिला रहे हैं। मेरे इमाम पूछ रहे हैं कोई और बचा तो नहीं है? मेरे आला हजरत की ज़बान में यूं कहिए उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। मेरे नबी ने कहा था हुसैन इब्न वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ऐसा लगा कि सरकारे दो आलम के मोजज़े की तस्वीर बनकर हुसैन रास्ते में यजीदियों को पानी पिला रहे हैं। मेरे इमाम ने सखावत का दरिया बहा दिया, सारे यजीदियों ने पी लिया। मेरे इमाम पूछते हैं सबने पी लिया? हुजूर पी लिया। कहा जानवर? कहा पी लिए। कहा बताओ तुमने मशकीजों को भर लिया? कहा भर लिया। अब मेरे इमाम ने कहा ठीक है चले जाओ। सारे यजीदी चले गए, हुसैनी भी देख रहे थे। हुसैनियों ने मचल कर कहा होगा या इमाम आप इतना तो बता दीजिए, आप जिन्हें पानी पिला रहे हैं क्या ये यजीदी है? कहा हाँ यजीदी है। कहा या इमाम क्या करबला में आपको ये पानी देंगे? मेरे इमाम ने कहा नहीं, मैं पहले से जानता हूँ करबला में यजीदी मेरे ऊपर पानी बंद कर देंगे, मेरे बच्चों के ऊपर पानी बंद कर देंगे, मेरे साथियों के ऊपर पानी बंद कर देंगे। इमाम हुसैन के साथी बोल पड़े या इमाम जो पानी बंद कर देंगे आपने उन्हें पानी पिलाया है, जो आपके बच्चों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे आपने उन्हें पानी पिला दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ हुसैनियों मैंने उन्हें पानी पिलाया है। जानते हो क्यों पिलाया है? याद रखना मैंने इसलिए पिलाया है ताकि वाकई करबला के बाद, मेरी शहादत के बाद जब दुनिया का कोई मुअद्दिब करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो वो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर करबला में पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के बेटों का किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुसैन ने कभी फुरात को बुलाया, हुसैन ने कभी फुरात को बुलाया ही नहीं। फुरात तो मचल रहा था, आका इशारा हो जाए, इशारा हो जाए मैं सकीना के लब तक पहुंच जाऊं, इशारा हो जाए, इशारा हो जाए मैं अली असगर के लब तक पहुंच जाऊंगा, आपके खेमे तक पहुंच जाऊंगा, बस एक इशारे की जरूरत है। इमाम ने कहा नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। हुसैन भूखे रहेगा, नमाज पढ़ेगा, हुसैन प्यासे रहेगा, कुरान की तिलावत करेगा, हुसैन प्यार से रहेगा, सब्र करेगा, हुसैन